Good morning, my dear students. Today we are going to learn about sentences. So, firstly, I would like to tell you what is a sentence. A sentence is a group of words which makes sense. For example, Rohan is playing with football. Ria has a beautiful doll. Both of these sentences are making a complete sense, that is why we call them sentences. Now, let us learn about the rules to start a sentence. Sentence always begins with a capital letter and it always ends with a full stop. Now, consider the given examples. Sam loves ice cream. Here we have started the sentence with a capital letter and it is ending with a full stop. Consider the next sentence. The children are playing. Here also we have started the sentence with a capital letter and it is ending with a full stop. So both of these sentences are starting with capital letter and ending with full stops, and they are making a complete sense as well. So these are sentences. Now let us learn about parts of sentences. Basically, a sentence has two parts, subject and predicate. Now, I'll tell you about subject. What is a subject? Subject is the main part of a sentence. It answers who or what in a sentence. Who or what in a sentence. It can be a noun or pronoun. Now, let us consider the example. The birds flew in the sky. Who is doing the action here? The birds. So, the birds आपके क्या होंगे यहाँ पे? Subject. Now, next sentence. He has small eyes. Who is being described here? He. So, who is the subject? He. So, subject is the main part of the sentence. It answers who or what, कौन और क्या. Next is predicate. What is a predicate? Predicate tells you about the actions or gives the description about a subject. Now, let us consider the same example. The birds flew in the sky. What action did the bird do? Bird ने क्या किया? Birds ने क्या किया? Flew in the sky. तो यहाँ पे आपका predicate क्या होगा? Flew in the sky. Next sentence is he has small eyes. आपका सब्जेक्ट था यहाँ पे he. उसकी आंखें कैसी हैं? Has small eyes. तो आपका predicate क्या होगा? Has small eyes. Now हम अगले दो सेंटेंसेस देखते हैं. द सेंटेंस इज द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क. तो हु यहाँ पे पहले आप देखेंगे किसके बारे में बात हो रही है. किसके बारे में बात हो रही है? द कैट. तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा? द कैट. वॉट इज द कैट डूइंग? क्या एक्शन कर रही है वो? इज ड्रिंकिंग मिल्क. तो आपका प्रेडिकेट क्या होगा? इज ड्रिंकिंग milk. Now, let us consider next example. Lions roars in the forest. जो शेर हैं कहाँ दहाड़ते हैं जाके? जंगल में, फॉरेस्ट में. तो किसके बारे में बात हो रही है? पहले आप देखेंगे who या what. तो किसके बारे में बात हो रही है? लायंस के बारे में. तो आपका लायंस क्या है? सब्जेक्ट. तो लायन जंगल में जाके क्या करते हैं? रोर्स इन द फॉरेस्ट. रोर्स मीन्स होता है दहाड़ना. तो आपका प्रेडिकेट क्या हुआ यहाँ पे? रोर्स इन द फॉरेस्ट. So I hope now you understand the parts of a sentence. First one is subject and second one is predicate. Now we will learn about types of sentence. So basically there are four types of sentence. Firstly, we will discuss declarative and interrogative. Let us understand the following statements.
I have taken two characters here. First one is Nikki and second one is Mickey. जो आपकी निकी है, शी इज़ टेलिंग मिकी अबाउट अ पिकनिक एंड मिकी इज़ आस्किंग निकी अबाउट द पिकनिक. सो लेट अस read the following examples. Nikki says, I am going for a picnic. Mickey asks, where will you go? Nikki says, I am going to Gandhi Park. Mickey asks, how will you go? Nikki says, I am going by a car. Mickey asks, what will you do? Nikki says, I will play with my cousins. Mickey asks, may I come too? So, do you observe the difference between the sentences said by Nikki and said by Mickey? Now, read the following sentences. जो निकी बोल रही है वो सारे के सारे आपके टेलिंग सेंटेंसेस हैं. मिकी उससे कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस पूछ रहा है. ही इज़ आस्किंग फ्रॉम निकी. तो जो इस साइड आप देख रहे हैं ये सारे आपके टेलिंग सेंटेंसेस हैं. दिस साइड आपके सारे के सारे आस्किंग सेंटेंसेस हैं. तो इनको हम स्टेटमेंट्स भी कहते हैं और ये क्वेश्चंस हैं. तो जो एक टेलिंग सेंटेंस होता है वो हमेशा शुरू होता है कैपिटल लेटर से एंड इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप. नाउ जो आस्किंग सेंटेंस आपके होते हैं इट ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड इट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. सो बेसिकली टेलिंग सेंटेंसेस tells something. It is a statement. It begins with a capital letter and ends with a full stop. An asking sentence is a question asking about something. It always begins with a capital letter and it ends with a question mark. Now we will learn about other two types of sentences. Next two types of sentences are imperative and exclamatory. Firstly, imperative sentence क्या होते हैं आपके जिसमें आपकी एक रिक्वेस्ट, कमांड या एडवाइस दी जाती है. ठीक है. अगर आपने imperative sentences बनाने हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द वर्ब इन द बिगनिंग. वर्ब क्या होता है आपका एक एक्शन वर्ड. फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले क्या कहेंगे. वर्ब क्या है आपका पानी बचाओ. सेव वाटर. किसको बचाओ. सेव वाटर. सिट डाउन. अगर आपने किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो यू विल से काइंडली सेव वाटर. तो हमने इसके साथ क्या वर्ड ऐड किया. काइंडली. नेक्स्ट अगर आपने किसी से कहना है कि बैठ जाओ तो अगर आप उससे रिक्वेस्ट करोगे तो यू विल ऐड प्लीज़ हेयर. तो रिक्वेस्ट कैसे परफॉर्म होगी. प्लीज़ सिट डाउन. अगर आपने किसी को एडवाइस देनी है. एडवाइस मीन्स होता है सलाह. सलाह आप कैसे देंगे. किसी को आप कहेंगे टेक रेस्ट. रेस्ट कीजिए. रिवाइज योर लेसन्स वेल. अपने लेसन्स अच्छे से रिवाइज कीजिए. तो इम्परेटिव क्या होगा आपका जहाँ पे आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं या किसी को आप सलाह या एडवाइस दे रहे हैं. तो जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आप कैसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं. काइंडली एंड प्लीज़. तो ये थोड़ा सा कहने का पोलाइट वे होता है. जब भी वेन एवर यू आर रिक्वेस्टिंग समवन यू विल यूज़ द वर्ड्स काइंडली और प्लीज़. वेन एवर यू आर गिविंग कमांड टू एनीवन you can use sit down. Okay, when you are giving advice to someone you can say take rest, revise your lessons well. Now last sentence that we will discuss is exclamatory sentence. exclamatory sentence बेटा आपके क्या होते हैं, whenever you want to express strong feelings such as अगर आप बहुत खुश हैं, आप दुखी हैं या if you are surprised तो आप exclamatory sentences का यूज़ करते हैं. तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू exclamation mark आपका कैसा होता है. दिस इज़ द साइन ऑफ exclamation mark. फर्स्ट ऑफ ऑल make a straight line this way, then this. Okay, now
एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ आप कैसे करते हैं, आप लोग को थोड़ी सी इंटरजेक्शंस पता होनी चाहिए। इंटरजेक्शंस क्या होती हैं आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर सरप्राइज्ड तो आप क्या यूज़ करते हैं? वाओ, रियली। इफ़ यू आर हैप्पी तो आप कैसे बोलते हैं? yippee, हुर्रे। इफ़ यू आर सैड तो आप कैसे बोलते हो? ओह, अलास। नाउ I'll tell you some examples of exclamatory sentences first. Oops. Oops क्या होता है? Indicates a mistake. अगर आपसे कोई गलती होती है तो you will say oops. Ouch. Indicates an injury. अगर आपको कभी चोट लगती है तो आप क्या बोलोगे? Ouch. Shh. टीचर आपको क्लास में कभी बोलता है साइलेंट रहने को, तो टीचर करते हैं ना श्श, तो दैट इंडिकेट्स साइलेंस। हे, अगर आप किसी को अटेंशन दे के बुलाना चाहते हो तो टू कॉल अटेंशन यू यूज़ हे। नाउ वी विल डू अ स्मॉल एक्सरसाइज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज आउच, आई हैव ट्विस्टेड माई एंकल। आपको दर्द हुआ, आउच। आउच मैंने आपको बताया था इंजरी के लिए यूज़ होता है, तो फर्स्ट सेंटेंस आपका कौन सा है? एक्सक्लामेटरी। ओके, व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो ये क्या है आपका? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा टाइप है? इंटेरोगेटिव। आई लाइक बनाना चिप्स। तो ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है और एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो अब आपको इसको क्या बोलोगे? डेक्लरेटिव सेंटेंस। आपने यहाँ पे किसी को कहा है प्लीज़ सिट डाउन, ये मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था, क्या है ये आपका? बताइए। प्लीज़ सिट डाउन। इम्परेटिव सेंटेंस। I hope you understood all the topics well. Thank you and have a nice day.